Good morning, students. Today we are going to start with our new chapter, chapter number 4, Python Fundamentals. In our previous lecture, we have discussed about the basic programming functions and how we write the program. Now, today we are going to study with all the fundamental things, or what are the tools by which we can use in our Python programming. So, first let's start with our basic term, IPO cycle. IPO cycle. So in computer, everything runs on this IPO cycles. Now what is this IPO cycle? Input, process, and then output. Clear? So today we are going to discuss about what are the different inputs which we can use in our Python, and how these inputs are converted to outputs, and in what form you get these outputs. Clear, students? So let's start with our first basic topic, which is your characters. In Python there are different characters. There are in Python there are different characters. Now what do you mean by characters? For example, if I have to make an program for calculator, so what things I will require? One, numbers, okay, then plus, minus, multiply and divide means arithmetic operators, and then logics. Clear? Suppose I have to make an data for our school. So in that case, for example, I have to keep an data of students of a school. So in this case, I will require names, class, mobile number. Means here I need A, B, C, D, these things. In class I need Roman numbers, and in mobile number I need simple integers. Clear? So these all the things lie under characters. There are different characters which we are going to use in our Python programming. So first, these characters are known as, first is our letters. First character is our letter. Letters. So letters are A to Z capital and A to Z small letters. Clear? And after that, there are digits. Digits 0 to 9. Clear? Then special symbols. Special symbols. For example, you have to give the code for a email site. Then you will require that @ sign, this sign, this sign. These all are under special symbols. Then your white space. Have you seen when you fill any kind of form, then there is like this name, then a white box is given to you to fill your name. These are known as white space. It means that blank space which you give in your to design a forms. For example, when you fill any kind of online forms, so you find this box there in which you have to input what is asked to you. So these are also comes under characters. Is that clear? This is all about characters. Now we will discuss about tokens. What is token?
नाउ tokens. In our previous lecture I have write print hello world. Clear? So in this case what I am doing that I am giving a function print. What I am printing hello world. So this is your keyword. This is your keyword, or this is a function which your system will interpret in his own language. This function will be treated as machine language. अब कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि जो भी मतलब अब मेरे को पास जो भी एक फंक्शन है या फिर जो भी सपोज करो मेरे पास एक डाटा है उसको प्रिंट करना है, ठीक है, तो इस चीज़ से ये चीज़ समझेगा। उसके बाद जाएगा वो स्ट्रिंग के पास, मतलब जो अपना इंटरप्रेटर है, स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ आपने लिखी है या जो भी आपने कैरेक्टर्स दे रखे हैं वो उसको डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। तो ये हर एक वर्ड 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं? टोकन्स। जो भी ये भी टोकन, ये भी टोकन, मतलब ये इंडिविजुअल सिंगल वर्ड को अपन क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। फिर चाहे वो सिंबल हो, सपोज करो अगर मैं इस चीज़ को सिंपली ऐसे डिपिक्ट कर दूं, हेलो वर्ल्ड @ तो ये भी क्या होगा? आपका सिंपल टोकन। अब टोकन के अंदर क्या होता है? कुछ सब पार्ट्स होते हैं। जैसे आप कैरेक्टर्स को अलग टोकन्स में डिफाइन करते हो, आप नंबर्स को अलग टोकन्स में डिफाइन करते हो, आप सिंबल्स को अलग टोकन में डिफाइन करते हो। तो टोकन्स कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के। अब टोकन्स को देखते हैं कि कौन कौन से टोकन्स होते हैं। वैसे हर एक मार्क, चाहे सिंबल, पंक्चुएटर, कैरेक्टर्स, सारे किस केस में आते हैं? टोकन्स के अंदर आते हैं। अब टोकन्स के टाइप। तो टोकन्स कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। फर्स्ट टाइप क्या है? सिंपल कीवर्ड्स, जैसे प्रिंट फंक्शन, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐसे फंक्शंस जो आप प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हो तो उनको क्या बोलते हैं? सबको कीवर्ड्स। सेकंड है आपका आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स। थर्ड वन क्या है? लिटरल्स। फोर्थ है आपका ऑपरेटर्स। और लास्ट है आपका पंक्चुएटर्स। ये विजिबल नहीं हो रहा ना, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं। पंक्चुएटर्स मतलब जितने भी साइन जो आप सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हो, फुल स्टॉप, कॉमा, अपोस्ट्रोफी एस, जो भी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है? पंक्चुएशंस में आती हैं। तो ये 5 टाइप के आपके क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंपली, जैसे कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं ये हटा दूँ। अब अपन एक इंडिविजुअल एक पार्ट ले लेते हैं इन सब चीज़ों का। तो सबसे पहले लेते हैं अपन कीवर्ड्स कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। Now start with keywords. Keywords are special type of functions which convey a particular meaning. For example, अगर मैंने यहाँ पर लिखा print, तो इसका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब इसका एक पहले से ही एक फिक्स काम है कि ये आपके सिस्टम में ये काम करेगा, ठीक है। मतलब जिनकी ऐसी वर्ड्स जिनका फंक्शन प्री प्लान्ड है, आप उनमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर ये प्रिंट है तो ये प्रिंट ही करेगा। सपोज़ मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ फॉल्स, तो ये फॉल्स फंक्शन ही की तरह यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल फॉर, इन, ये सारे क्या हैं? कीवर्ड्स जिनका एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और इनका जो काम होता है, ठीक है, वो पहले से डिफाइंड होता है आपके किसी भी पाइथन लाइब्रेरी में। ऐसे वर्ड्स को अपन क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की, ठीक है, मतलब जो एक स्पेशल
मीनिंग कन्वे करें, उनको अपन क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। अब बात करते हैं अपन सिंपल आइडेंटिफायर्स। अब देखिए नाम से ही थोड़ा सा अपन एक रफ आइडिया लेते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है एक टैग जो उस चीज़ को बाकी सबसे अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का नाम है शुभम, ठीक है। अब शुभम हो तो बहुत सारे सकते हैं, बट इफ़ सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा शुभम कछावा, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर, अब ये भी आप कह सकते हो हाँ शुभम कछावा बहुत सारे जनों का नाम हो सकता है, बट मैं किस कंटेक्स्ट में इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ उस चीज़ पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड रहती हैं। अब फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है आप अपनी फाइल को एक पर्टिकुलर एक यूनिक नाम देते हो ताकि वो बाकी आपके कंप्यूटर में जितनी भी स्टोर्ड फाइल्स हैं उन सबसे अलग हो सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा माई डॉट फाइल, ठीक है। तो मतलब ये जो मैंने इस फॉर्मेट में इसको लिखा है ये इस चीज़ को बाकी सबसे थोड़ा सा यूनिक बनाएगी, ठीक है। अब आइडेंटिफायर्स में आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हो, आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो, आप पंक्चुएटर्स का यूज़ कर सकते हो, आप लिटरल्स का यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल टू मेक अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और टू मेक अ पर्टिकुलर फाइल नेम अ यूनिक, देन एट दैट प्लेस आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड। आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी है। उसके बाद आपका लास्ट आता है स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। लास्ट आपका आता है लिटरल्स या फिर स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर मैंने लिखा बाय पाइथन, बाय पाइथन। तो ये सारे जो मैं स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ उनको अपन बोलते हैं लिटरल्स, क्लियर। अब अगर ये नंबर्स में होंगे तो अपन बोलते हैं न्यूमेरिकल लिटरल्स। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4, लेकिन इनको स्ट्रिंग के अंदर डाला, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल लिटरल्स। ये चीज़ क्लियर हुई। इनको अपन क्या बोलते हैं, ये तो क्या नॉर्मल लिटरल्स, तो ये आपके क्या हो गए लिटरल्स, क्लियर। अब लिटरल्स को आप अदर फॉर्मेट्स में भी तोड़ सकते हो, वो चीज़ अपन ने देख ली है, जैसे न्यूमेरिकल लिटरल्स, अल्फ़ाबेटिकल लिटरल्स, बस ये सब चीज़ें। अब अपन बात करते हैं सिंगल स्ट्रिंग की और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की, ठीक है। जैसा कि अपन एक चीज़ डिस्कस की थी, आपको याद होगी, मैंने आपको कहा था सपोज करो या तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं प्रिंट हेलो, फिर वापस प्रिंट माय नेम इज़ शुभम, फिर थर्ड लाइन आई एम अ स्टूडेंट, क्लियर। तो इसका आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, पहले ये लाइन शो होगी, इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट कैसा आएगा, हेलो माय नेम इज शुभम, फिर आई एम ए स्टूडेंट, क्लियर, ये चीज़ आएगी। अच्छा, फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था इसको अपन मल्टीपल स्ट्रिंग के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्ट्रिंग क्या होता है कि आपको बार बार प्रिंट फंक्शन को यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बार ही प्रिंट लिखना है, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ आपको जितना भी डाटा स्टोर करना है, जितनी भी ऐसे टाइप लाइन लिखनी है या जो भी चीज़ करनी है आप उसमें कर। फॉर एग्जांपल इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है 1 2 3 1 2 3। अब आप इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो एक पैराग्राफिकल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी, क्लियर। इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज मल्टीपल स्ट्रिंग। अब चाहे आप इस स्ट्रिंग्स को बढ़ा लीजिए, चाहे आप एक बैकलैश वर्ड यूज, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा पहले हेलो, फिर मुझे वापस लिखना है, फिर मैंने यहाँ पर यूज़ किया बैकलैश और फिर मैंने लिखा वर्ल्ड। तो ये भी आपका क्या काम करेगा, ये सिंपली वही काम करेगा, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को शो करेगा। मतलब जो भी आपको लाइन नेक्स्ट में लिखनी है या फिर जो भी चीज़ आपको लिखनी है इन
लाइन फॉर्म। तो ये तो फॉर्मेट क्या हो गया अपना मल्टीपल स्ट्रिंग्स का। अब बात करते हैं अपन इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स, अब इंटीजर लिटरल्स में क्या आएगा, आपके जितने भी नंबर्स होते हैं विच यू कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, वो सारे क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। बट पाइथन अलाउज 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स, अब ये 3 टाइप के कौन कौन से हैं, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। फर्स्ट है आपकी बाइनरी। बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 एंड 1, ठीक है। फिर आता है आपका सिंपल सा ऑक्टल। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जिसका बेस पावर क्या हो, 8 हो। फिर आता है अपना लास्ट हेक्साडेसिमल, इसकी पावर क्या होती है, 16। ये सारे किस में आते हैं, अपने इंटीजर लिटरल्स में। अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की। मैंने आपको एक शायद वर्ड बताया था, फ्लोटिंग। अब देखिए आपका जो सिस्टम होता है वो ये वाली वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम मतलब उसको थोड़ा कम पहचान में आता है। जैसे मैंने लिखा 7.0, अब मैं इस चीज़ को सिंपल 7 भी लिख सकता था। ये तो हो गया आपका इंटीजर फॉर्म, और सिस्टम जो आपका होता है वो इसको पढ़ता है फ्लोट फॉर्म की। ये होता है फ्लोट, मतलब जहाँ पर भी आपके पास डेसिमल फंक्शन आ जाए उसको अपन किस में लेते हैं, सिंपली फ्लोट फॉर्म में लेते हैं। क्लियर हुई बात। अब फ्लोट फॉर्म के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका सिंपल सा फ्रैक्शनल फॉर्म। जैसे फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो गया, 2.0, 5.28, ये तो सारे अपने क्या हो गए, फ्रैक्शनल फॉर्म। और एक आता है आपका एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1.7e। अब ये e क्या बताता है कि आगे जो वैल्यू है ये टर्मिनेट करती ही जा रही है, ठीक है। मतलब इसका एंड कहाँ होगा मुझे नहीं पता, ये आगे टर्मिनेट करती जा रही है। अब मैं हर एक, जैसे इफ सपोज करो अगर मेरे को पाई की वैल्यू डिफाइन करनी है अपने सिस्टम के अंदर, तो पाई की वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं है, तो ये सिंपली आपको क्या दिखाएगा, 3.14, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो ये आपको सिंपल क्या करेगा, 3.14 और e दिखाएगा, ठीक है। ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म। यहाँ तक अपनी सारी बात हो चुकी है जो भी अपन को चाहिए होता है बेसिक पाइथन फंडामेंटल्स की। अब बात आती है अपनी बूलियन लिटरल्स की। बूलियन अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो बूलियन लॉजिक्स क्या होते हैं, सिंपली एंड और नॉट। नाउ वी विल इंक्लूड ओनली बेसिक गेट्स, नॉट आर एडवांस गेट्स। in this you can only define and operator, or operator, and last one is your not operator, okay. This comes under boolean literals. Boolean literals. The next part is your operators. Simple. Now operators are of very kind. There are different types of operators, but we only know the basic operators. For example, arithmetic operators, plus, minus, multiply, divide. Then greater than or less than, greater than or less than, and equals to also. So these all are simply are operators. Clear? Identified operator, is and, or, 0 and 1, all are simple arithmetic operators. I hope these all operators. Now last and the foremost thing is our punctuators. Comma, full stop, this one,
sorry, all these things which define your sentence type are known as punctuators. Is that clear? I hope all the basic Python fundamentals are covered here. Now in our next part we will discuss about how the programming works in on these operators.